Hello everyone, welcome back. Today we are going to start with chapter number 13, Fields and Fences. In this chapter we will see what is perimeter and what is area. So today we are going to begin with perimeter. So let's see what is perimeter. The length of the boundary is known as perimeter. ठीक है, किसी भी फिगर की जो बाउंड्रीज होती हैं उसको क्या कहा जाता है? पेरीमीटर कहा जाता है. मान लो दिस इज़ अ स्क्वायर, ठीक है. सो इसकी बाउंड्रीज जो भी है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग हियर, इसको क्या कहा जाएगा? पेरीमीटर कहा जाएगा. मान लो कि इसकी सिंस ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी. तो मान लो इसकी ये साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है. इट मीन्स इसकी हर एक साइड क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अगर मैं पूछूं कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, तो हम क्या कहेंगे? 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है. तो किसी भी फिगर की बाउंड्रीज को क्या कहा जाएगा? पेरीमीटर कहा जाएगा. देयरफॉर पेरीमीटर मीन्स डिस्टेंस अराउंड अ फिगर और कर्व, ठीक है. सो डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर और अराउंड अ कर्व. We can only measure perimeter of a closed figure or curve as movement around a closed figure or curve is possible, ठीक है. किसी भी पेरीमीटर, किसी भी फिगर का पेरीमीटर हम तब फाइंड कर पाएंगे अगर वो फिगर क्लोज्ड फिगर है या फिर क्लोज्ड कर्व है. मान लो ये जो फिगर मैंने बनाया है ये एक क्लोज्ड फिगर है. अब जैसे कि ये फिगर है, ये एक फिगर क्लोज्ड फिगर नहीं है, ठीक है. ये कर्व एक क्लोज कर्व नहीं है. तो जो कर्व क्लोज्ड रहता है हम सिर्फ उसी का ही पेरीमीटर ढूंढ सकते हैं, ठीक है. क्लोज्ड फिगर्स का ही हम पेरीमीटर ढूंढ सकते हैं. ओपन फिगर्स या ओपन कर्व का हम पेरीमीटर नहीं ढूंढ सकते. ओके. Following are the different types of triangles. Measure of the sides are given. Calculate the perimeter. अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दिए गए हैं और हर एक साइड का एक मेजरमेंट दिया गया है और हमें कहा गया है कि फाइंड पेरीमीटर. तो देखते हैं हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे. In the first figure, a triangle is given, a right angle triangle is given, and the sides are 6 centimeter, 10 centimeter, and 8 centimeter. So what will be the perimeter? Perimeter equals to 6 centimeter, 10 centimeter plus 8 centimeter. So perimeter will be 6 plus 10, 16, and 16 plus 8, 24 centimeters. Okay. So the perimeter of this figure is 24 centimeter. Now next is also a triangle. The first side is given 10 centimeter, other side is also 10 centimeter and 8 centimeter. We can see here these two sides are same and the third side is different. So this is a isosceles triangle. Okay. So the perimeter will be 10 centimeter plus 10 centimeter plus 8 centimeter. So perimeter will be 28 centimeter. 10 plus 10, 20, and 20 plus 8, 28 centimeter. Okay. Third, see, this side is given 9 centimeter, 14 centimeter, and 12 centimeter. Here all the sides of the triangle, this triangle are different. So this is a scalene triangle. Alright. So perimeter will be 9 centimeter plus 12 centimeter plus 14 centimeter. So perimeter is 35 centimeter. Now next, the given triangle is an equilateral triangle since all sides are similar. ठीक है, all sides are equal. 7 centimeter, 7 centimeter, and 7 centimeter. So the perimeter is 7 centimeter plus 7 centimeter plus 7 centimeter, 21 centimeter. Now next, the given side, this side measures 15 centimeter, this side measures 20 centimeter, and this side measures 28 centimeter. So the perimeter is 15 centimeter, 28 centimeter, 15 centimeter plus 28 centimeter plus 20 centimeter. So the perimeter will be ऐड करके आपको यहाँ पे खुद लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट, सी ऑन द नेक्स्ट पेज, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. अब नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दी गई हैं, ठीक है. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स दिए गए थे, अलग अलग ट्राइंगल्स दिए गए थे जिसके हमने पेरीमीटर ढूंढी, सीखा हमने कैसे पेरीमीटर ढूंढते हैं. नाउ अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें अलग अलग तरीके की फिगर्स हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरीली ट्राइंगल, ठीक है. यहाँ पे अलग अलग फिगर्स दी गई है. तो
फर्स्ट फिगर हम देखते हैं क्या क्या साइड्स है। सी 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो इसका भी हम पेरीमीटर कैसे ढूंढेंगे? बाय एडिंग ऑल द साइड्स। ठीक है, सारी साइड्स को हम ऐड करके क्या ढूंढेंगे? पेरीमीटर ढूंढेंगे। सो 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर. So the perimeter is 41 centimeter. In the next we can see it is a rectangle, right? See, opposite sides are same. This side is 6 centimeter and this side is 8 centimeter. So हम perimeter ढूंढेंगे by adding all the sides. 6 centimeter plus 8 centimeter plus 6 centimeter and plus 8 centimeter. So the perimeter of this figure is 28 centimeter. Now the next figure we can see the measures of each side is given. This side is 12 centimeter, means this side measures 12 centimeter. This side is 14 centimeter. This side is 9 centimeter and this side is 18 centimeter. So by adding all the sides we will get our perimeter. So perimeter find करते हैं 12 centimeter plus 14 centimeter plus 9 centimeter plus 18 centimeter. So the perimeter of this figure is 53 centimeter. नेक्स्ट फिगर देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक पेंटागन दिया गया है। ठीक है, पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? पेंटागन हैज़ 5 साइड्स एंड ऑल साइड्स सिमिलर. सी, यहाँ पे सारी साइड सिमिलर हैं. ईच साइड मेजर्स 5 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर विल बी 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. सो 25 सेंटीमीटर. दिस फिगर हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. हमने ये तो देखा कि पेरीमीटर में हम सारी साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर ढूंढ सकते हैं. ठीक है, लेकिन अब इसको इजी बनाने के लिए, ठीक है, पेरीमीटर को ढूंढना इजी बनाने के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बिल्ड की गई हैं. ठीक है, ताकि हम पेरीमीटर जो है इजीली निकाल सकें, ताकि हमको इतने बड़े बड़े एडिशंस ना करने पड़े. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है. ठीक है, तो अब देखो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेड्थ्स. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. अब आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 लेंथ है. ठीक है, तो हम लेंथ को कैसे लिख लेंगे? 2 लेंथ्स. ठीक है, अब हमारे पास ब्रेथ भी 2 है, तो हम कैसे लिख लेंगे? 2 लेंथ्स प्लस 2 ब्रेथ्स. ठीक है, और लेंथ प्लस लेंथ क्या हो जाएगा? 2 लेंथ्स हो जाएंगी एंड ब्रेथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा? 2 ब्रेथ हो जाएंगी. ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है हमारे पास? 2 लेंथ्स प्लस 2 ब्रेथ. अब 2 हम कॉमन आगे निकाल लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. अब ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. ठीक है, मान लो क्वेश्चन दिया गया होगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको लेंथ दी गई होगी, ब्रेथ दी गई होगी और आपको कहा गया होगा कि पेरीमीटर फाइंड करो. ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला यूज़ करके. फॉर्मूला क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. इसी तरीके से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की भी फॉर्मूला देखेंगे, ताकि हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकें. हमको बार बार प्लस ना करने पड़े, यानी रिपीटेड एडिशंस ना करने पड़े, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है. अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स सिमिलर होती हैं. ठीक है, ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ साइड. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. ठीक है, तो कितनी साइड्स हो गई? 4 साइड हो गई. तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितनी साइड्स है टोटल? 4 साइड्स. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स. ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही. कल हम देखेंगे क्वेश्चंस